Hello, hello students. In the last video, I had given you an explanation in Hindi on National Mandela, the long walk to struggle, long walk to freedom. मैंने आपको हिंदी में उसकी समरी बताई थी ताकि आप वो कहानी अच्छी तरह से समझ लें। और ये पार्ट 2 है, नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ नेल्सन मंडेला एंड टुडे आई शैल रीड द बुक, आई शैल रीड द टेक्स्ट and I shall explain it in English and also in Hindi so that you may understand the lesson completely. Okay, so I am going to start, and I told you also to take your book ready, keep your book ready for the class, and you should have taken the book before you while I am reading and I am explaining it. Okay, so even if you don't have a book at this time, you should revise it again. You said you can open the video again and while keeping the book in front of you and understand the lesson. But before that, you should understand, and I shall make you understand each and everything here. Okay, so I am going to start. The heading is National Mandela Long Walk to Freedom. National Mandela लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आजादी। आजादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई। आजादी के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द ब्रिटिश हैंड्स, ही हैड फॉट ए लॉन्ग struggle against the British rule for freedom of South Africa from British rule. Okay? ब्रिटिश रूल से बचने के लिए, अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए, उसके खिलाफत में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी नेल्सन मंडेला ने। And when he was for 30 years, he was in jail. He was imprisoned for 30 years for his activity against the government. Okay, so I am going to now start the first para. Apartheid is a political system. कहते हैं apartheid is a political system. Do you know apartheid? Apartheid was a system. You can say apartheid is a system of government. एक गवर्नमेंट का सिस्टम है और इस सिस्टम में it is a system of government that separates each group of race of a group. He separates people among groups, and each group having the same race. Race, you understand? Race, the people of one kind having the same body structure, same face, similar type of face, similar type of hair, and similar type of way of speaking. They were all one. They were all Africans. But as we have language, a different language in different states, similarly they also had different language and different way of style, way of life, different cloth, different hairstyle, and their lifestyle was quite different. So what अंग्रेज did, अंग्रेजों ने क्या किया, उनको जो अफ्रीका के जो रेस ग्रुप थे, रेशियल ग्रुप थे, जो अलग अलग रेस के ग्रुप थे, उनको अलग किया और अलग करके उनको शासन किया, उनको पर रूल किया। तो by this way the separation of people among different groups, the separation of people among different groups of each race, okay, so that they can easily control them. इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको बिल्कुल एक एक ग्रुप को अलग कर दिया, एक एक रेस, एक एक प्रजाति के व्यक्तियों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया। तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं एपार्थीड।
or an apartheid is based on here apartheid is based on color color difference. इसको अंग्रेजी में, इसको हिंदी में भी बोलते हैं रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति. तो पीपुल ऑफ अफ्रीका वेयर ब्लैक, ऑल पीपुल वेयर ब्लैक and all people were of the similar style, but still there were differences and they were separated into groups for the management of the government so that they can be easily controlled. So this was the apartheid, separation of people among groups, separation of black from white, and black और white के बीच में there was a conflict between black and white. White wanted to rule and black wanted not to leave their place because it was their original place for hundreds of years, for thousands of years they had been living in South Africa. They wanted not to leave it, but British people, the white people are called British people are called white people. So white people wanted to control South Africa in their hands and rule the country, rule South Africa according to their will and wish. अपनी इच्छा के अनुसार वो शासन चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रुप में बांट दिया. ऐसे ग्रुप में बांटने को हम कहते हैं एपार्थीड. तो दैट द बिगेस्ट मूवमेंट मतलब आंदोलन, द बिगेस्ट आंदोलन वाज अगेंस्ट एपार्थीड. तो एपार्थीड के खिलाफ ये आंदोलन था. तो कहते हैं एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. उनकी रेस के अनुसार वो लोगों को बांट करके सरकार चलाने का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं एपार्थीड. आफ्टर सेपरेटिंग द पीपुल अमंग ग्रुप्स, the way of running the government, the system of government is called apartheid. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या तुम बोल सकते हो? Do you know the three countries, names of three countries are given below. Which country was under such apartheid system, under the system apartheid? So there were United States of America. No, it was not run by apartheid system. And Australia, it was also not run by apartheid government. And South Africa, only that country, South Africa, was run by this political system that was known as apartheid. केवल साउथ अफ्रीका ही ऐसा देश था जिसमें apartheid के आधार पे apartheid नाम का political system चलाया गया. Have you heard of Nelson Mandela? क्या तुम do you know Nelson Mandela? Yes, definitely. And his African National Congress and National Mandela and his African National Congress. Mandela had created a party to fight against the government, fight against the white people. He established a party named African National Congress. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी के द्वारा वो लड़ाई करते रहे और उसका नेतृत्व करते रहे. ही वॉज लीडर ऑफ द नेशनल अफ्रीकन नेशनल पार्टी, नेशनल कांग्रेस. स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट apartheid. और ही स्पेंट ए लाइफ टाइम his full life, his complete life was spent
इन फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। वो अपार्थीड के लिए, अपार्थीड के खिलाफ सारा जीवन लड़ते रहे। ऑल द लाइफ नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थीड। Mandela had to spend 30 years in prison। और इस आंदोलन के दौरान due to this आंदोलन, due to this movement against the apartheid, he was sent to jail by the whites for 30 years। वो 30 सालों तक अंग्रेजों ने उनको जेल में रखा, क्योंकि बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द बैड रूलिंग सिस्टम, बैड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट रन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, द वाइट्स। ब्रिटिश को वाइट बोलते हैं, और इसीलिए हम ये लड़ाई जो है वाइट और ब्लैक की है। दिस इज द फाइट बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक had their own land in Africa, South Africa, and whites came from England, and they were trying to occupy, they were trying to win over South Africa and make their government. So he was sent to jail for 30 years by the white government. Finally, democratic elections held in South Africa, और बाद में और अंत में क्या हुआ कि at the last the government of whites could not control them। It was very difficult for the white government to run with their aims। वो अपने एम्स के साथ में चल नहीं सकते थे, और he was unable to fight with them। He was unable to fight with them। So उन्होंने क्या किया? The British government, the white government allowed national elections। Okay, you go to the national election, national elections have been allowed, you go to the national election, if you win the election, if you come in power, then you will become the प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके नाम की आपको एक पार्टी बना देते हैं, और इस पार्टी तो उनकी थी, ठीक है, हम आपको इलेक्शन के अलाउ करते हैं। आप जब वो लड़ नहीं पा रहे थे, व्हेन दे वर अनेबल टू फाइट विद द ब्लैक्स, तब उन्होंने देन दे अलाउड द ब्लैक्स, द अफ्रीकन्स टू go in election, in open election, and if they win the election, they will become the ruler of the South Africa, they will become the government, black will be government, the government will be black if they win the election। तो elections were held in 1994, 1994 में election हुए, and in that election in 1994 there were elections, general election allowed by the white people, and in that election the Mandela became the first black president of South Africa। In that election he won the election, he defeated the white government and became the first black black president of South Africa। और वो सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने। ही बिकेम दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर विनिंग दी इलेक्शन। ओके, in this extract from his autobiography, in this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about the historic occasion। What is long walk to freedom? Long walk to freedom,
मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई, ये एक टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस टॉपिक पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं के जीवन के बारे में, हमने क्या क्या किया, हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमको कौन कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ी, हमको कौन कौन से लाभ हुए, हमारे क्या क्या नुकसान हुए, जनता को कितना कष्ट करना पड़ा, ये सब जो है अपनी जिंदगी के बारे में लिखने को बोलते हैं। जो बुक लिखी जाती है, जो टेक्स्ट लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ओके। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। This was a book. Long Walk to Freedom was a book written by Nelson Mandela, and in this book he wrote autobiography. Okay, and whatever he is telling in the lesson, और जो कुछ भी वो लेसन में बताएंगे वो अपनी ऑटोबायोग्राफी से ही बताएंगे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी उन्होंने सालों से लिख रहे हैं। क्या हो रहा है, किसके खिलाफ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखी। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो वट एवर वी रीड इन दिस लेसन, वट एवर आई शैल रीड इन दिस लेसन, मोस्ट पार्ट, लार्जर पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो उनकी ऑटोबायोग्राफी की जो पुस्तक है, जो बुक है, उससे निकाल करके ही उन्होंने बोला है। वो भाषण दे रहे थे। ही वॉज गिविंग ए लेक्चर आफ्टर विनिंग द इलेक्शन व्हेन he was speaking on the occasion of the inauguration of his government। अपने गवर्नमेंट जब उन्होंने बना ली, गवर्नमेंट के उद्घाटन के समय उन्होंने ये भाषण दिया, और वही भाषण जो है वो उनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ओके, ऑटोबायोग्राफी है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक अवसर। इतने सालों, 300 सालों तक लगातार अंग्रेजों के हाथों में उनके दुर्व्यवहार, उनका दमन, उनका अत्याचार बर्दाश्त करने के बाद उनको 1994 में उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। And he got a chance to fight an election, general election, and he became the president of South Africa in 1994. And Mandela became the first black president of a new nation। एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर हुए। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। ये इनके लिए ऐतिहासिक क्षण था, जो उनको इनाग्रेशन कर रहे थे, उद्घाटन करने के लिए करने में, उद्घाटन के समय जो बोल रहे थे, व्हाट ही वाज स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ इनाग्रेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट। एक नई सरकार, पश्चिम बंगाल करें, साउथ अफ्रीका में उनकी एक नई सरकार आने पर वो जो उन्होंने भाषण दिया वो उनके लिए हिस्टोरिक ओकेजन था। इट वाज ए हिस्टोरिक ओकेजन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या तुम सोच सकते हो कि कैसा ओकेजन होगा? यस, उस ओकेजन को हम आगे पढ़ेंगे। क्लिक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। उस समय जैसे समाचार पत्र होते हैं, रेडियो होते हैं, उस समय तो रेडियो था, तो BBC ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, BBC की रेडियो सर्विस, इंग्लैंड की रेडियो सर्विस ने 10 मई 1994 को अपना एक वक्तव्य दिया, मतलब समाचार के तौर पर, कि आज 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की सरकार बदल गई और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। इस तरह की उन्होंने डिटेल्स बताए क्या क्या हुआ। अब नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट।
Nelson Mandela, after election, Nelson Mandela became first black prime minister of South Africa. दक्षिण अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के इलेक्शन के बाद नेल्सन मंडेला पहले काले राष्ट्रपति, ब्लैक राष्ट्रपति बने। मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, 300 सालों तक वाइट लोगों के शासन के बाद, अंग्रेजों के शासन के बाद उन्हें पहले ब्लैक राष्ट्रपति, ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के वो 300 सालों के अत्याचार के बाद उन्हें बनने का मौका मिला। ओके, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द न्यू यूनियन बिल्डिंग amphitheater. Inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria. ये प्रिटोरिया वहां की एक जगह है, मेरा ख्याल वो शहर है वहां का प्रिटोरिया, या कोई छोटा स्टेट है, और प्रिटोरिया में ही सरकार की बिल्डिंग थी जहां सरकार बैठती थी। प्रिटोरिया इज ए सीट ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ व्हाइट्स हैड गवर्नमेंट इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में बैठ करके ही वो शासन अभी तक अंग्रेज लोग चलाते थे। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria. मतलब प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, उस तरह की बिल्डिंग है, उसका नाम है एम्फी थिएटर। बिल्डिंग का नाम क्या है? एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर नाम की बिल्डिंग प्रिटोरिया में ये इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये उद्घाटन किया गया। ठीक है, जैसे कोई राष्ट्रपति होगा, नया राष्ट्रपति बनेगा, तो कहां जाएगा? वो उद्घाटन उसका राष्ट्रपति भवन में ही होगा। यहां राष्ट्रपति भवन है और वहां पर क्या है? एम्फी थिएटर, AMPHITHEATRE, एम्फी थिएटर। तो प्रिटोरिया इज ए प्लेस, suppose say city. Pretoria is a city and there is a building named amphitheater. From there the inauguration ceremony of the new government of whites was done, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. And on that occasion of inauguration of new government in South Africa, about 140 presidents, prime minister, dignitaries बड़े लोग, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो 140 देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़े लोग वहां पर उपस्थित हुए, और उनकी उपस्थिति में उनको शपथ दिलाई गई, उनको राष्ट्रपति उनको बनाया गया, डिक्लेयर किया गया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 countries around the world. The people means dignitaries, president, prime ministers, and big dignitaries and big political leaders. They all attended the ceremony in Pretoria at amphitheater. The ceremony was the inauguration of a new government of blacks in South Africa.
attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by other. तो इन्होंने जो भाषण दिया, जो इनॉग्रेशन में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, तो उन्होंने बोला नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये इतना सुंदर हमारा साउथ अफ्रीका का देश कभी नहीं झेलेगा, कभी नहीं सामना करेगा। क्या है? द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अदर। ऑपरेशन मतलब अत्याचार, दमन और क्रूरता। कभी अब क्रूरता नहीं करेगा, क्रूरता कभी उसके सामने नहीं करने वाला कोई होगा, कभी क्रूरता का अनुभव नहीं करेगा। वन बाई द अदर, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कोई ऐसी क्रूरता करे, ऐसा दमन करे, एक सरकार पब्लिक के ऊपर ऐसा दमन करे, ऐसी क्रूरता करे, ऐसा अत्याचार करे, ऐसे अत्याचार को साउथ अफ्रीका के लोग कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट हो गई। Jubilant scenes of the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colorates celebrating together. और जुबिलेंट मतलब उत्साही, उत्साह से भरे हुए प्रिटोरिया की सड़कों पर, ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, very jubilant scenes were there. Jubilant, utsaha, encouragement, what is called jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks. और सेरेमनी में जो सेरेमनी हुई, जो उनकी राष्ट्रपति बनाने की जो सेरेमनी हुई, उस सेरेमनी में 1 मिनट, ओके, हाँ, उस सेरेमनी में तो उस दिन का वो सीन बता रहे हैं कि ऑन द रोड्स ऑफ प्रिटोरिया that was full of jubilant people. Jubilant people मतलब people were filled in joy, jubilant, उत्साह के साथ वहां पर लोगों की भीड़ थी, और उस भीड़ में ब्लैक और वाइट्स, और उसको ब्लैक और वाइट्स दोनों ही साथ में खुशी मना रहे थे, उत्साह मना रहे थे सड़कों पर। द डे ऑफ इनॉग्रेशन or day of inauguration of a new government, there were blacks and whites together. We are celebrating the inauguration of new government of South Africa. Okay, more than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. लगभग 1 लाख लोगों ने, more than 100 people, more than 100 South African men, women and children, मतलब पुरुष, महिलाएं और बच्चे, करीब 1 लाख, मोर देन 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर नाचे, गाए और इंजॉयमेंट करे और प्लेजर उन्होंने किया। नेक्स्ट पैरा कमिंग 10th में डॉन। 10th में क्या है? 10th में क्या है? 10th में 1994, the inauguration day, the inauguration of a new government, 10th May 1994. तो दिस इज 10th May of 1994. तो अगेन Mandela says, writer says, he is explaining things. 10th May dawned bright and clear. उस 10 मई की मई का जो दिन था, जो सवेरा हुआ, जो मॉर्निंग हुई, वो मॉर्निंग बिल्कुल ब्राइट, बिल्कुल चमकदार
और क्लियर, बिल्कुल स्वच्छ सवेरा हुआ। उसमें कहीं अफ्रीका के लोगों को कहीं कोई मतलब गलत शुरुआत नहीं दिख रही थी। बहुत सुंदर, सुखद और ब्राइट और क्लियर भविष्य दिख रहा था उस शुरुआत, उस मॉर्निंग से। दैट मॉर्निंग वॉज शोइंग द गुड फ्यूचर, द ब्राइट फ्यूचर ऑफ South African people. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before inauguration. तो 10 मई 1994 को जिस दिन उद्घाटन होना था, द डे ऑफ इनॉग्रेशन 10th May 1994, it started with bright and clear future. Sorry. थोड़ी देर में, because he was going to become the prime minister, the president. Mandela was going to become the prime minister. He had won the election. So what happened? The government started arrangements, and the people of different countries, leaders, dignitaries were coming in the South Africa, खुशी के साथ में आ रहे थे, and who were coming to pay respect before the inauguration. और वो इनॉग्रेशन के पहले वो मंडेला को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे कि हाँ, आप महान हैं और आपने विजय प्राप्त की, इसलिए वो उनको सम्मान देना चाहते थे, इसलिए वो पहले से ही आ गए और बड़े सब खुशी थी। The inauguration would be the largest gathering ever for the international leaders on South Africa soil. और inauguration would be the largest gathering सबसे बड़ी भीड़। और ये कल्पना की जा रही थी, people were thinking कि this will be the inauguration day will be the largest celebration, largest gathering ever national leaders of South Africa, international leaders of South Africa. साउथ अफ्रीका की जमीन पर इतने ज्यादा लोगों की, इतनी बड़ी भीड़, इंटरनेशनल लोगों की भीड़ शायद ये सबसे बड़ी होगी, इससे बड़ी अभी तक नहीं हुई। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. हमने आपको बताया कि जिस बिल्डिंग में, जैसे राष्ट्रपति भवन है, जैसे लाल किला है, लाल किला तो कोई बात नहीं, जो राष्ट्रपति बैठते हैं, राष्ट्रपति भवन हमारे यहाँ, तो उनके यहाँ क्या बताया था मैंने, प्रिटोरिया में एक एम्फी थिएटर है, ये भी बिल्डिंग का नाम है एम्फी थिएटर। और वो एम्फी थिएटर बना किस चीज का है? सैंडस्टोन का बना है एम्फी थिएटर। जो एम्फी थिएटर की जो बिल्डिंग है, जहाँ राष्ट्रपति बैठते थे, जहाँ ब्रिटिश शासक बैठते थे, वो सैंडस्टोन की बनी, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इसको अंग्रेजों ने बनवाया था प्रिटोरिया में, और सैंडस्टोन से बना ये एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में बनाया गया था, अंग्रेज शासक वहां बैठते थे। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। और 20 साल, 10 साल, मतलब बहुत साल, ये जो प्रिटोरिया की जो सीट थी, जो प्रिटोरिया की जो एम्फी थिएटर था, इस एम्फी थिएटर में जो सीट, गवर्नमेंट की जो सीट थी, वो द डिकेड्स लॉन्ग इट हैज बीन द सीट। बरसों तक इस पे अंग्रेज सरकार इस एम्फी थिएटर में बैठी, बरसों तक इस एम्फी थिएटर में, जिसमें नेल्सन मंडेला बैठने जा रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पे, वहां पर ब्रिटिश सरकार भी तक बैठती रही। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। और आज क्या है?
जहाँ पर अंग्रेजों की सरकार, जहाँ व्हाइट्स की सरकार, वेयर द व्हाइट्स रूलर्स वेयर यूज्ड टू सिट टू रन द गवर्नमेंट, वहां पर क्या क्या वातावरण बदल गया आज के दिन वातावरण बदल गया कि इट वॉज द साइट ऑफ ए नेशनल गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग। उसको उन्होंने रेनबो गैदरिंग बनाया। रेनबो में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। तो बोल रहे हैं कि इट वॉज ए साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, मतलब ऐसी गैदरिंग जो डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट देशों से, डिफरेंट जगहों से लोग वहां जमा हुए। तो ये अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग कपड़े पहनावा, अलग अलग क्या वो सारे देशों के लोग वहां पर इकट्ठे हुए। इसका मतलब हुआ कि वहां पर एक रेनबो गैदरिंग हुई। रेनबो गैदरिंग, इट वॉज ए रेनबो गैदरिंग ऑफ पीपुल ऑफ ऑल कंट्रीज, ओके, of different colors and nations for the installation of South Africa, first democratic non-resident government। तो दसों साल, बहुत साल ये जो सीट प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर में, जहाँ पर ब्रिटिश रूल करते थे, ब्रिटिश की सरकार बैठती थी, वहाँ नेशनल मंडेला बैठकर अब शासन करेंगे। और वहाँ आज का वातावरण ऐसा है कि दुनिया के विभिन्न रंग, विभिन्न डिजाइन और विभिन्न, कहने का मतलब है उनका रीति रिवाज, भाषा, वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। काय के लिए इकट्ठा हुए? टू फॉर्म द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। उन्होंने नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने के लिए सब इकट्ठे हुए। नॉन रेशियल, जहां पर रेस की कोई बात नहीं। ब्रिटिश शासन में तो रेस की बात होती थी, और हमने बताया था कि ये जो आपका एपार्थीड है वो रेस पर बेस्ड है। तो यहाँ रेस की कोई बात नहीं थी। सारे देशों के लोग, सारे कलर्स के लोग, सारे व्हाइट और ब्लैक और भी जितने सारे देश हैं, सब उसके पक्ष में आकर उसको, उसके समर्थन में, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसको मतलब मंडेला को बधाई देने के लिए वहां पहुंचे। काहे के लिए? फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट एक एपार्थीड के खिलाफ जो गवर्नमेंट तैयार हुई, जो रंग भेद की और मानव भेद की खिलाफ जो सरकार तैयार हुई, उसमें शामिल होने के लिए वो वहां पहुंचे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर। ऑटम डे, ऑटम मतलब between समर एंड विंटर। समर और विंटर के बीच का जो टाइम होता है, समर खत्म होती है और विंटर स्टार्ट होने को होता है, तो जो बीच का टाइम होता है, द मिड पीरियड, द पीरियड बिटवीन समर एंड विंटर, जो विंटर सीजन होता है और समर सीजन होता है, उसके बीच का जो कुछ टाइम होता है जब विंटर, तो वो उसको बोलते हैं ऑटम, AUTUMN, ऑटम डे। तो ऑटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम में ऑटम का मतलब इट वॉज लवली ऑटम डे। इन्होंने ये मंडेला बोल रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, और ये बहुत सुंदर ऑटम डे, जिस दिन वो 10 मई 1994 का दिन, वो ना वो गर्मी है और ना वो सर्दी है, तो वो ऑटम डे, वो ऑटम का सीजन है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर सेनानी। बोल रहे हैं कि उस दिन वो ऑटम डे जो 10 मई 1994 का है, ऑन दी 10th May 1994, when he was going to become the president, and there was the inauguration ceremony, and people from all countries were attending it. And that day, when he was going to the main stage to be declared as the president, his daughter had accompanied. His daughter name, what was the name of the daughter of Mandela? Zenani. Zenani was the
daughter of Mandela, she accompanied, she went with him to the inauguration stage, जहाँ पे उन्हें where he was to be declared the president of South Africa. On the podium, podium मतलब मंच, स्टेज होता है ना. On the podium, podium means stage where the celebration is organized. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as the second deputy president. सबसे पहले वो प्रेसिडेंट नहीं बने, उन्होंने पहले अपना डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट से छोटा, तो ही वॉज डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री है ना. तो उन्होंने पहले ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president. सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे उनको शपथ दिलाई गई. पहले sworn in क्या होता है? sworn in मतलब शपथ ली. शपथ लेते हैं ना कि मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति होना स्वीकार करता हूं और मैं अपने देश की रक्षा के लिए और जनता की रक्षा के लिए सारा जीवन काम करूंगा. इस तरह की शपथ लेनी पड़ती है सभी देशों में और सभी इस तरह के बड़े बड़े पदों के लिए, तब उन्हें राष्ट्रपति डिक्लेयर किया जाता है. ओके, तो ही वॉज स्वर्न इन, द फर्स्ट स्वर्न इन कौन था? उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क, वो उनको पहले उपराष्ट्रपति बनाया गया, सेकंड डिप्टी प्राइम प्रेसिडेंट बनाया गया. देन थैबू मेबेकी was sworn in as the first deputy prime minister. तब दूसरे एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को, दो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. He was the president, but there were two deputy president. Deputy president मतलब प्रेसिडेंट के कामों को देखने के लिए, उनको हेल्प सपोर्ट करने के लिए दो उन्होंने डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए. और दूसरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन था? टैबो मिकेबी was sworn in as the first deputy president और उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया. और जो पहले भी जो बनाया वो क्या नाम है? मिस्टर डी क्लर्क, उनको सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया. तो दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट उन्होंने शपथ करा दी. अब इसके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न, अब इसके बाद उनका मौका आया. व्हेन इट वाज माय टर्न मतलब मौका, मेरी बारी आई. व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब वो पोडियम में आए, जब मेरी बारी आई, ये मैंडेला खुद बोल रहे हैं, जब मेरी बारी आई राष्ट्रपति की शपथ लेने की, स्वीयर करने की, स्वॉर्न इन करने की, तो आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे and uphold the कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करने की और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखने की उन्होंने शपथ ली. और शपथ क्या ली कि मैं अपने लोगों, मैं अपने को और डिवोट माई सेल्फ, मैं अपने को सारा जीवन डिवोट कर दूंगा, सेक्रीफाई कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक. मैं अपने साउथ अफ्रीका रिपब्लिक को, साउथ अफ्रीका देश को मैं उसके अच्छाई के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दूंगा. एंड इट्स पीपुल, और साउथ अफ्रीका के लोगों, साउथ अफ्रीका को और साउथ अफ्रीका के लोगों को मैं उनकी अच्छाई के लिए, उनके लिए अच्छे अच्छे कामों करने के लिए मैं डिवोट कर दूंगा अपने को, मैं अपने को उसमें लगा दूंगा. आई सेड, मैंने कहा
ये मैंडेला बोल रहे हैं। मैंडेला ने क्या कहा, आई प्लेस टू ओबे दी अपहोल्ड एंड अपहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक देश को चलाने के लिए एक नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है, उस कानून के मुताबिक सरकार चलाती है और जनता ही उसको बनाती है। सरकार के लोग और बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसको मिलकर के बैठ के बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है और वो साउथ अफ्रीका भी साउथ अफ्रीका का देश भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके अनुसार चला। तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, आई शैल रन माई कंट्री, आई शैल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माई कंट्री एंड ओबे द कमांड्स द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऊपर बनाए रखने के लिए अपना और लोगों के देश के लिए और देश के लोगों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके भले, उनके कल्याण के लिए हम अपने को समर्पित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ही सेड इन दी इनॉग्रेशन सेरेमनी। ओके, to the assembled guests and the watching world. To the assembled guests and the watching world, I say, जो assembled मतलब इकट्ठा हुए, to the assembled guests and watching world, I say. Then he spoke. Then Mandela, he was speaking from the podium on the day of ceremony, on the day of what is called inauguration of the new government. He said, he spoke to the guests, सारे मेहमानों को जो वहाँ जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उनको और अफ्रीका के सारे लोगों को और सारे देशों के जो गेस्ट मेहमान वहाँ शामिल हुए थे और जो पूरी दुनिया was looking at him, और पूरी दुनिया जो साउथ अफ्रीका को देख रही थी दूर से, उन सबको संबोधित करके उन्होंने बोला, क्या बोला? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर सेल्फ प्रेजेंस हियर। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। हम सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के बाय आवर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति में हम खुद लोग कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब आज तो उनको स्वतंत्रता मिल गई। आज वो राष्ट्रपति बनाए जाने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि आज हम सब जितने मतलब विदेशों के लोग हैं, जो उनके देश के लोग हैं, सारे लोगों के सामने हम सब लोग मिलकर ये जो शान है, जो शान, ग्लोरी मतलब शान, हम ये जो शान है, उस शान को हम confer the glory and hope to the newborn liberty। हम अपने देश को और सारी दुनिया के देशों को और हम ये कहते हैं हम कि ये जो मतलब कहने का शानदार मौका है, और ऐसी शान को, दक्षिण अफ्रीका की शान को हम जो एंड होप टू द न्यू बॉर्न बेबी, और जो ग्लोरी और होप, ये नए बने हुए देश की आज़ादी को हम ये सब बात समर्पित करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विशेषकर एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मानव विनाश, डिसास्टर मतलब एक प्रकार का विनाश, मानव विनाश, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी विशेष, अत्यधिक, मानव विनाश मतलब जिसमें मनुष्य का विनाश हो रहा हो। और आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर आई लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। जिस टाइम में हम रहे हैं हमारे देश में, जहाँ अनलिमिटेड अत्याचार, अनलिमिटेड
अनलिमिटेड दमन जो हुआ वैसा वो ज्यादा दिन नहीं रहा, वो ज्यादा दिन दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत समय तक रहा, 300 सालों तक ये दमन, ये अत्याचार वहां रहा, ठीक है। और ये मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी के रूप में, एक ऐसे समाज के रूप में परिणित हो जाएगा कि जहां पर सारी ह्यूमैनिटी, सारा मानव समाज गर्व करेगा। मतलब साउथ अफ्रीका was the land of terror, was the land of torture, was the land of oppression, was the land of cruelty done by the British government, done by the white government, and that lasted 300 years. And he says it will not last more. अब it will not last long. अब ये और नहीं चलेगी। और अब जो हमें जो स्वतंत्रता की मिली है, और जो हम आप लोगों के मतलब मैं आप लोगों के सामने सभी को इस स्वतंत्रता को मैं आप लोगों के जनता के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, अपने देश के संविधान को ऊंचा रखने के लिए हम पूरा जीवन लगा देंगे। और ऐसी सोसाइटी बनेगी, ऐसा दक्षिण अफ्रीका बनेगा जिसपे पूरा दुनिया गर्व करेगी। वी हु वेयर आउटलॉ माने आउटलास का मतलब क्या होता है? आउटलास का मतलब होता है जो कानून को नहीं मानता ऐसा आदमी, जो कानून के खिलाफ काम करता रहता है ऐसा आदमी। बिकॉज द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका were treated as outlaws. People of South Africa were treated as outlaws because the laws were such, ऐसे कानून थे कि जिनका पालन नहीं किया जा सकता। If the कानून says, if the law says to a father, don't live with your children, don't look after your wife, can it be accepted? It cannot be accepted. So they were treated as outlaws. उनको ये समझा जाता था कि ये लोग कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ये लोग बहुत हमारे देश के, हमारे समाज के दुश्मन हैं, ऐसा अंग्रेज सोचते थे। We were outlaws not so long ago. अभी थोड़े समय पहले तो हम लोग आउटला थे। अब मंडेला बोल रहे हैं, हम लोग तो अभी थोड़े समय आउटलास थे, हम लोग कानून को नहीं मानने वाले थे और ऐसे सरकार को मानती थी ये लोग कानून विरोधी हैं। Have today been given the rare privilege to be asked to host, आज हमें जिनको अभी तक कानून की खिलाफत, कानून तोड़ने वाला माना जाता था अंग्रेजों द्वारा, उन्हें आज विशेष अधिकार मिला है। आज हमें विशेष अधिकार दिया गया है। रेयर प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, प्रिविलेज विशेष अधिकार, रेयर ऐसा सबको नहीं मिलता। रेयर मतलब ऐसी चीज जो बहुत कम होती है, जो सबको नहीं मिलती है, ऐसा रेयर प्रिविलेज जो हमको मिला, जो हमको विशेष अधिकार मिला। कहे का अधिकार? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे लोगों का होस्ट बनने के लिए। होस्ट मतलब जो प्रोग्राम करता है, जो सेलिब्रेशन करता है, मुखिया। तो हम वहाँ पर मैं ये सारे दुनिया के सारे लोगों को अपने देश में होस्ट करने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है। It has been the rare privilege to be host. होस्ट मतलब बताया ना, होस्ट का मतलब जो सेलिब्रेशन
का हेड है, जो सेलिब्रेशन की व्यवस्था करता है, और उसके यहाँ सब लोग जाते हैं, सब उससे मतलब वो ही इज एट दैट टाइम ही इज दी हेड। तो वो जो हॉस्ट है, मतलब हॉस्ट कौन है? साउथ अफ्रीका हॉस्ट है। हॉस्ट कौन है? साउथ अफ्रीका के पीपुल हॉस्ट है। हॉस्ट कौन है? नेशनल मंडेला हॉस्ट है। और गेस्ट कौन है? हॉस्ट का उल्टा होता है गेस्ट। गेस्ट कौन है? दूसरे दूसरे कंट्रीज के लोग, वो लोग गेस्ट हैं। तो हॉस्ट होने का मौका मिला, जिन्हें कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो आज दुनिया के देशों के हॉस्ट बने हैं इस सेलिब्रेशन में, इस मौके पर। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। तब बोलते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, मेरा धन्यवाद है उन सभी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो विदेशी मेहमान। डिस्टिंग्विश्ड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश्ड मतलब जिनको दुनिया में दुनिया में परिचित हैं, दुनिया में उनकी इम्पोर्टेंस है, दुनिया में वो विशेष स्थान रखते हैं, ऐसे वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम अपने सारे विदेशी मेहमानों को फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में आकर के, साउथ अफ्रीका में आकर के, एक साथ मिलकर के, हमारे साथ मिलकर के इस सरकार को, मतलब ब्रिटिश सरकार को, और सब लोग मिलकर के हमारे दक्षिण अफ्रीका के हवाले या हमारे हवाले करेंगे, हमको समर्पित करेंगे। ये बोला जाता है, ये आज से गवर्नमेंट ये आपकी हो गई, आप प्रेसिडेंट हैं, अब आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है। तो हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। और जब ऐसा जो सिचुएशन है कि सब विदेशी मेहमानों, जितने भी देशों के लोग आए थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, तो उन सब लोगों ने मिल करके साउथ अफ्रीका का जो वाइट गवर्नमेंट थी, वो वाइट गवर्नमेंट को की जगह पे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को और नेशनल मंडेला की गवर्नमेंट को वहाँ बैठा दिया। और ऐसे, और उसको उन्होंने कहा क्या, इट इज ए कॉमन विक्ट्री ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और ये उन्होंने कहा कि ये सब कॉमन विक्ट्री है, ये कॉमन हर देश की विक्ट्री है, ये हमारे साउथ अफ्रीका की भी विक्ट्री है। क्यों विक्ट्री है? क्योंकि अंत में सभी को मालूम पड़ रहा है कि मानव के खिलाफ अत्याचार, अन्याय, दमन अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए सारे लोग मिल करके आज हमारे साथ मिल करके, एक साथ बैठ करके इस ब्रिटिश वाइट गवर्नमेंट को हटा करके वाइट गवर्नमेंट के स्थान पे यहाँ की ब्लैक गवर्नमेंट को सम्मान से उनके स्थान पर बैठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं। आई थैंक टू देम ऑल हु हैव विजिटेड फ्रॉम, हु आर आवर गेस्ट, हु आर आवर डिग्निटरी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बिकम द पार्ट ऑफ गैदरिंग टू हैंड ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम वाइट्स टू द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका। हम उनको धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये कॉमन विक्ट्री है, ये सभी लोगों की विजय है। और काय के लिए? जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये शांति के लिए, न्याय के लिए और मानव का जो उसकी जो सम्मान, इसके लिए मानव का सम्मान, मानव को जो सम्मान देना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी की विजय है। और ये सभी की विजय है। ह्यूमन डिग्निटी अमेरिका की भी विजय होती है, और लंका की भी विजय होती है, पाकिस्तान की भी, भारत की, ठीक है, और किसी भी देश की। और शांति सभी की विजय होती है। शांति में अगर कोई शांति मिल जाए तो इसका मतलब पीस जो है, लड़ाई झगड़े ना हो, युद्ध ना हो, तो ये सभी की विजय है। जस्टिस
जस्टिस हर देश चाहता है, ये सभी की विजय है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आज की जो विजय है, जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों की जो विजय है, वो जिसमें आप इस तरह से सबका इकट्ठा होकर के आप दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हाथ में यहाँ की सरकार देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। तो ये बहुत ऐसा क्षण है जिसका गर्व करती है पूरे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया इसमें गर्व करेगी। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation माने छुटकारा, आज़ादी से छुटकारा। Emancipation EMANCIPATION, Emancipation मतलब फ्रीडम समझते हैं आप, आज़ादी। तो आज़ादी वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमको आज राजनीतिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम हमको आज हमने प्राप्त कर ली। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब हमको इलेक्शन लड़ने का, हमें राजनीतिक पार्टी चलाने का, हमें इलेक्शन लड़ने का, जनता जिसको चाहती, जनता ने चाहा तो हम प्रेसिडेंट हो रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। तो मतलब हमको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन भी था। पॉलिटिकल ये मतलब कहने का हमारा वो पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। तो वी हैव रिकलेक्टेड अवर वी हैव गेन्ड अवर पॉलिटिकल राइट्स। We should be given opportunity to make our government. We should be given opportunity to fight election and make our government if we win. So we have won the election and we have formed the government, and it is a common victory for all, because it is for justice, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए ये जो है ये सभी देशों की आवश्यकता है। इसलिए ये उन्होंने कहा, मंडेला ने कहा कि ये कॉमन विजय है, ये सबकी विजय है। वी हैव एट लास्ट, ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम प्रतिज्ञा करते हैं, उन्होंने कहा वी प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, PLED। तो वी टेक मतलब उन्होंने बोला कि आई प्रॉमिस, इसका मतलब हुआ आई प्रॉमिस टू लिबरेट, मतलब स्वतंत्र करना। आई प्रॉमिस टू लिबरेट ऑल अवर पीपुल। हम चाहते हैं हमारे सारे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, अवश्य हम अपने को स्वतंत्र करने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। और गरीबी की जो पॉवर्टी की जो बॉन्डेज है, जो हमारे ऊपर एक पॉवर्टी की भी बॉन्डेज है, पॉवर्टी ने भी हमको बंधक बना रखा है। तो पॉवर्टी गरीबी के बंधन से, और ये डेप्रीवेशन मतलब जिसमें लोगों को अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हमें खाने का अधिकार, हमें पीने का अधिकार, हमें रहने का अधिकार, हमें बात करने का अधिकार। ये डेप्रीवेशन नहीं, जब नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं हमें उसका डेप्रीवेशन। तो डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को, भेदभाव, वंचित रहना और कष्ट और गरीबी और ये तरह का जो वाइट गवर्नमेंट है उसके कानून, इन सब से छुट्टी पा करके इन सब से हमें छुटकारा मिला है। एंड वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमें आज राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by the other. Never and never again, कभी नहीं ऐसा होगा इस सुंदर धरती पर। Never this land, beautiful land,
Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by the other. ऑपरेशन मतलब दमन, अत्याचार। कभी कभी इस धरती पर बोल रहे हैं कि आज के बाद कभी 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 भी इस धरती पर, इस सुंदर साउथ अफ्रीका की धरती पर कोई एक आदमी दूसरे पर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन मतलब भेदभाव, दमन, ये सब नहीं कर पाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और जो हमें ये ग्लोरियस, शानदार जो विजय मिली है, ग्लोरियस मतलब शानदार, जो हमें शानदार जो मतलब कहने का चीज़ मिली है, शानदार हमको जो अचीवमेंट मिला है, उपलब्धि मिली है, इस उपलब्धि के सामने, इस उपलब्धि का जो सूर्य है कभी भी अस्त नहीं होगा, कभी भी अस्त नहीं होगा। मतलब ये जो ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो मानव को स्वतंत्र करना, मानव को अत्याचार से बचाना, ये जो हमें जो शानदार जो समय मिला है, इस समय का सूरज कभी अंत नहीं होगा। हमेशा वी शैल लिव ए ब्राइट लाइफ, वी शैल लिव ए ग्लोरियस लाइफ, एंड वी शैल लिव free from all bondage, free from all type of inhuman rules of the white government. Let freedom reign, let freedom reign, reign मतलब समय, चलने दो। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को जिंदा रहने दो, स्वतंत्रता को बना रहने दो, स्वतंत्रता को हमेशा बना रहने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ईश्वर, लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रेन, हमारी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे, और ईश्वर इसको, अफ्रीका को आशीर्वाद दे। This is a very long lesson, and it is very difficult, and I shall take it in two parts, and because without teaching it you cannot understand the lesson. Okay, next para. It is very 8-10 pages. So okay, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. As a few moments later, और ये तो व्यवस्थाएं चल रही थी, ये सब व्यवस्था चल रही है, और वो शायद व्यवस्था करने के पहले भाषण दे रहे हैं, जो भी है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array. और कुछ ही क्षणों में हमने आंखें उठा करके देखा। वी लिफ्टेड अवर आईज, हमने आंखें उठा करके देखा। इन ऑर मतलब प्राइड में, गर्व में, हमने ऊपर आंखें उठाकर देखा। एज ए स्पेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के जेट्स, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट तो काम करने लगी, तो साउथ अफ्रीकन जेट्स वहां पर एक साथ निकल करके जैसे तिरंगा बनाते हैं, उसको जो सेलिब्रेशन होता है उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसकी प्रशंसा में, उसके सम्मान में वो साउथ अफ्रीकन जेट्स वहाँ से पास किए। हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे निकले, और ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और सेना के जवानों की जवान क्रमबद्ध होकर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और परफेक्ट तरीके से, जिस तरह से सेना चलती है, और सेना परफेक्ट फॉर्मेशन में ओवर दी यूनियन बिल्डिंग। थोड़ी समय में ये देखा कि जब हमने आंखें ऊपर उठा करके देखा, तो हमारे यूनियन बिल्डिंग मतलब एम्फी थिएटर के ऊपर से बहुत सारे जेट्स निकल के जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, और ज़मीन पर बहुत सारे जवान, सेना के जवान टुकड़ियाँ वहाँ पर मार्च कर रही हैं, और वो मार्च कर रही हैं, और दहाड़ रही हैं, वो उनकी एक्सरसाइज कर रही हैं, क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, मैं मतलब आर्मी पीपुल आर इन देयर एक्शन टू गिव रेस्पेक्ट टू दी कमिंग गवर्नमेंट. A few moments after, we all lifted our eyes in awe, मतलब प्राइड. हम गर्व में हमने जब आंखें उठा करके देखी तो हमारे हमारे सर के ऊपर, मतलब हमारी वो एम्फी थिएटर जो मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति को बैठना है, उसके ऊपर से बहुत सारे जेट एयरक्राफ्ट लाइन से निकल गए गरजते हुए, और हेलीकॉप्टर्स गरजते हुए निकल गए, और नीचे सेना के जवान चारों तरफ लग गए. मतलब these people saluted to the coming president, and saluted to the government that is going to come. जो सरकार आ रही है उसके सम्मान में वो सब काम करने लगे, और सेना के लोग अपने गरजने लगे, और उनकी सेना की गर्जन भी देखने लगी. मतलब इन सभी लोगों ने मिलकर के वो एम्फी थिएटर की सुरक्षा, इस सेलिब्रेशन की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली. मतलब ये कि सेना आ गई ताकि अब कोई प्रॉब्लम ना हो. It was not only a display of pinpoint precision and military force. ये केवल एक मिलिट्री फोर्स, सेना की शक्ति का केवल एक दिखावा मात्र नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. ये केवल एक सेना के लोगों का वहां पहुंचना और उनको मार्च करना, और ये केवल उनको ये दिखावा मात्र नहीं था. इट वॉज नॉट ए शो बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. मतलब ये सेना के जो साउथ अफ्रीका की जो सेना है उसका सरकार के प्रति उदार मतलब लॉयल्टी, मतलब आप मतलब वो कि टू एक्सेप्ट दी साउथ अफ्रीकन न्यू गवर्नमेंट एज देयर मास्टर्स. लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. और उन्होंने ये सब होने का मतलब है उन्होंने डेमोक्रेसी, जनता की शासन का सम्मान के रूप में, उनके सम्मान के रूप में ये सब किया गया. टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. वो गवर्नमेंट जो स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से इलेक्टेड चुनाव हुआ था, ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ऐसी डेमोक्रेसी समझते हो, जनता का शासन, ऐसी जनता के शासन को मिलिट्री और आर्मी और एयरफोर्स के लोगों ने अपना सम्मान जताया और उनको एक्सेप्ट किया, और उनके अंडर में काम करने को अपनी हामी भरी. टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. व्हाट ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और थोड़ी देर में, थोड़ी क्षणों में, ओनली मोमेंट बिफोर, हाँ कुछ ही क्षण पहले ये जो हुआ था कि साउथ अफ्रीकन जेट्स निकले और हेलीकॉप्टर्स निकले और सेना नीचे आ गई, जमीन पर रोड पे आ गई, उस प्रोग्राम के आसपास घेरा डाल दी. It was not only a display of pinpoint precision of the military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moment before, और कुछ ही क्षण पहले जो सेना के जो बड़े जो हाईएस्ट जनरल थे, जो हाईएस्ट ऑफिसर थे जिनके अंडर में सेना काम करती है, दे आर नॉट नोन एज जनरल्स. द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, जनरल ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, जनरल ऑफ नेवी, अलग अलग उनके नाम होते हैं, डेजिग्नेशन होते हैं, लेकिन दे आर जनरल, दे आर हेड ऑफ दी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी.
ओके, तो तीनों सेनाओं के जो जनरल थे, जो हेड ऑफ द आर्मी जो थे, वो सब वहाँ पर आकर के उन लोगों ने मंडेला को सैल्यूट किया। हाँ, एक मिनट इधर चले गए। हाँ, ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, defense force and police and their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me। उन्होंने सबने आके, जो पुलिस का हेड था, जो आर्मी का हेड था, जो नेवी का हेड था, जो एयर फोर्स का हेड था, उन सब लोगों ने आके राष्ट्रपति मंडेला को सैल्यूट किया, उनको सैल्यूट किया एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी अपनी उनको उनकी अपनी लॉयल्टी की उन्होंने प्रतिज्ञा की। हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, अपनी वफादारी की उन्होंने प्रतिज्ञा की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। बोलते हैं मुझे कुछ खराब नहीं लगा था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। वास्तव में तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको कुछ टाइम पहले हमें अरेस्ट करने के लिए आते थे, हमें गिरफ्तार करने के लिए आते थे, और आज वो मुझे आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, वो हमको सल्यूट नहीं करते बट हमको अरेस्ट कर लेते। ये दिस वॉज द पोजिशन ऑफ मंडेला। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red and green, blue and gold of the new South African flag। और अंत में जेट्स, इम्पाला जेट्स उनको उस समय कोई नाम था, इम्पाला जेट्स की एक ट्रेल निकली, और वो तीन चार कलर्स की एक वो धुआं छोड़ते हुए निकल गए। तो वो जो नेशनल साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग बनाया गया है, जैसे हर देश का झंडा होता है, फ्लैग होता है, वैसे उस देश का भी झंडा सरकार बनने के साथ साथ में बनाया गया, और उस देश के झंडे की कलर में धुएं की एक लकीर छोड़ दी चली गई। क्या के लिए? इन दी रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग, in the respect of democracy, in the respect of the democratic government of South Africa। ओके, तो उसमें कौन कौन से हुए थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। अब हो सकता है शायद कुछ कलर चेंज हो गए, एक आध कम ज्यादा हो गए, आई एम नॉट श्योर, दिस विल हैव टू बी चेक्ड अप सेपरेटली। तो एनी हाउ, the colored trails of smoke were left from the shooting jets of South Africa। The day was symbolized for me by the playing of our national anthem। The day was symbolized for me for the playing of our national anthem। जैसे हर देश का नेशनल एंथम होता है, जैसे हम लोग के देश में जनगण मन अधिनायक जय होता है, वैसे अपने देश के लिए भी उन्होंने नेशनल एंथम बनाई थी। और द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम्स, और एंड विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी। और इन्होंने ये जो आज का दिन है, जो यह स्वतंत्रता का दिन है, जो आज हमें सरकार का उद्घाटन करने का दिन है, आज से सरकार स्टार्ट हुई है, आज से सरकार का उद्घाटन हुआ है। तो ये जो दिन है, सारे दुनिया के लोग यहाँ जमा हुए हैं, उन सब लोगों ने मिलकर, अफ्रीका के लोगों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की जनता को, नेशनल मंडेला को ये सरकार सौंपी। ऐसा दिन जो है एक प्रकार का प्रतीक है
एक प्रकार का प्रतीक है। कि क्या प्रतीक है कि ये टू नेशनल एंथम्स, इसमें दो नेशनल एंथम्स एक साथ गाई गई। एक नेशनल एंथम जो वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी उन लोगों ने गाई, और दूसरी नेशनल एंथम जो ब्लैक लोगों ने अपनी अपनी जो थी साउथ अफ्रीका की नेशनल एंथम थी, उन लोगों ने गाई, द ओल्ड एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका की भी नेशनल एंथम राष्ट्रगान, और singing the two national anthems and the vision of whites singing निकोल। अच्छा, अंग्रेज लोग जो क्या थे, व्हाइट लोगों की नेशनल एंथम थी एंड निकोसी, NKOSI, निकोसी सिकलेल, निकोसी सिकलेल, SIKELEL, निकोसी सिकलेल। ये क्या है? ये जो व्हाइट लोगों की जो उस समय गवर्नमेंट थी उनका ये राष्ट्रगान था, उनकी नेशनल एंथम थी। और अफ्रीका के लोगों की नेशनल एंथम क्या थी? डाई स्टेम, DIE अलग, इसके बाद स्टेम, STEM, स्टेम। तो ये दो प्रकार के, एक व्हाइट लोगों की एक ब्लैक लोगों की, दोनों नेशनल एंथम एक साथ गाई गई, और इसीलिए ये वो क्या बोलते हैं, मंडेला बोलते हैं कि ये जो दो एंथम गाई गई ऐसे मौके पे, मतलब दोनों मिलकर के एक हो गए, कोई विभिन्नता नहीं, कोई वो मतभेद नहीं है, सब एक हैं। अंग्रेज और ब्लैक एंड वाइट बोथ आर द सेम, और सभी मानव हैं। और इन्होंने प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट्स, तो ये एक विशेष दिन का प्रतीक है, जब अंग्रेजों ने और जब ब्लैक लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई, सरकार सौंपी, और उनके दोनों ही देशों के नेशनल एंथम वहाँ गाए गए, तो बड़ी एक रूपता से हो गई। और इसलिए नेशनल मंडेला बोलते हैं ये एक बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि दो नेशनल एंथम हमारे देश में एक साथ गाई गई। व्हाइट की एंथम जो अंग्रेजों की थी, और ब्लैक लोगों की एंथम वो अफ्रीका की थी, दोनों एंथम एक साथ में गाई गई। तो ये उनके लिए उन्होंने माना कि ये बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी हमारी एक रूपता की प्रतीक है। हम सब एक हो गए, ब्लैक और व्हाइट एक हो गए, और एक होने का प्रतीक है। द डे वॉज सिंबलाइज हो गया ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन के दिन। इनॉग्रेशन समझते हैं, उद्घाटन, कोई चीज शुरू की जाती है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं ओवरवेल्म्ड मतलब मैं विचारों में खो जाना, प्रसन्न हो जाना। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, हम अपने इतिहास को याद कर रहे थे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन के दिन, मतलब मुझे अपना इतिहास याद आया कि किस तरह से हमें सताया गया, किस तरह से हमें 300 साल तक हमारे देश को, हमारे ब्लैक्स को, साउथ अफ्रीका के लोगों को सताया गया, और आज वो दिन आया है। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था कि विशेष उनके अंदर एक भावना हुई कि हमें गुलामी से छुटकारा मिला और हमें अपनी स्वतंत्रता मिल गई। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skin. अब थोड़ी बैक हिस्ट्री बता रहे हैं
बैक हिस्ट्री मंडेला बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की पहले 10 वर्षों में, 20th सेंचुरी मतलब समझते हैं जब 19 के ऊपर चलता है तो 20th बोलते हैं। जैसे 1901, 1902, 1920, 1945, 1940, ये होता है 20th सेंचुरी। अब जैसे हम चल रहे हैं तो ये 20 ये चल रहा है 20th सेंचुरी, तो 20th ये चल रहा है 21st सेंचुरी। जब 20 से शुरू होता है और 20 के नीचे तो आगे जाता है, आगे तक जाता है तो ये 20th सेंचुरी है। और 2022 के ऊपर जब जाता है 2021, 2022, 2030, ये 2020, ये क्या है 2023, 2023, तो 2003 ये जो हमारा है 22वीं शताब्दी, ये 22वीं शताब्दी चल रही है। तो 19वीं शताब्दी की बात, पिछले बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब 19वीं शताब्दी का समय था, जब उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म से जन्म हुआ था, जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद एक बड़ा युद्ध हुआ था, एक बड़ा युद्ध हुआ था, ये ब्लैक और वाइट के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और युद्ध में ब्लैक लोग जीत गए और वाइट लोग हार गए थे, ठीक है। तो जब हार गए थे तो हारने के बाद जो ब्लैक लोग हार गए थे, ब्लैक लोग हार गए थे। ये पुरानी बात है, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 8, 9, 10, तो मतलब 1910 के अंदर, ठीक है, वो ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ अंग्रेजों और ब्लैक्स में, रेशियल ग्रुप में, और उस युद्ध में ब्लैक लोग हार गए। हाँ, ब्लैक लोग हार गए। तब उन्होंने essentially few years after a bitter Anglo war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa passed up the white-skinned people of differences and erected the system of racial discrimination, जैसे domination। तो ये इस जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। यस, अंग्रेज जीत गए। हाँ, जीत गए, और जीतने के बाद उनकी शत्रुता ना बनी रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, चालाकी से ये ब्लैक लोगों से के साथ समझौता कर लिया, उन्हें कुछ छूट दे दी, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे दी, आप ये करिए, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो जिन चीज़ों में रोकते थे उन्होंने रोकने पे छूट दे दी। और इसके बाद उन्होंने आसानी से सरकार अपनी बना दी। वैसे जीतने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा अपोजिशन था, इतनी ज़्यादा फाइट थी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट कि उन्हें सरकार बनाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने चालाकी से क्या किया, they cleverly made the way by patching up their differences with the blacks and formed the white government in South Africa। कितनी चालाकी से उन लोगों ने 1910-1908 के बीच में सरकार अपनी बना ली थी। और लेकिन उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन कानून उन्होंने ऐसे बनाए, ऐसे कानून बनाए जो मतलब कहने का अमानवीय और सबसे ज़्यादा कठिन और अत्याचार दमन करने वाले कानून उन लोगों ने बनाए। नाउ इन द लास्ट डिकेड, ये पहली शताब्दी की बात है, उन लोगों ने कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए जिनसे मानव का साउथ अफ्रीका के लोगों का जीवन दुभर हो गया, जीवन कठिन हो गया। और उन कानूनों के बीच में वो रह नहीं सकते थे, जिंदा नहीं रह सकते थे। तो लेकिन
आज नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब बोल रहे हैं कि आज लास्ट डिकेड है, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में है। तो फर्स्ट डिकेड और लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी लगभग लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी लगभग 200 साल तक उन लोगों ने, अंग्रेजों ने वहाँ पर शासन किया। लगभग 200 साल उन लोगों ने वहाँ पर शासन किया, और शासन करने के बाद आज का जो ये 20th सेंचुरी का जो लास्ट है, 20th सेंचुरी का जो लास्ट 10 ईयर है, इसमें हम स्वतंत्र हो गए। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन एट 8th डिकेड ऑफ एज ए मैन, जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र 80 ईयर्स थी, 80 साल की, लगभग 80 साल की उम्र थी। 19th सेंचुरी बिगिनिंग एंड 19th सेंचुरी बिगिनिंग, हाँ 19th सेंचुरी फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th एनीहाउ। तो उन्होंने जो सरकार बनाई, उन्होंने जो कानून बनाया, बहुत खतरनाक, मानव को जानवर बना देने वाले कानून बनाए, और मानव के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया, और जानवरों के साथ भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता है। तो आज बोल रहे हैं कि आज ये 20th सेंचुरी की ये लास्ट डिकेड है। तो एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मैं आज 80 साल का हो गया हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम आज बदल दिया गया है, उलट दिया गया है। जो सिस्टम था अंग्रेजों का, वो सिस्टम ओवरटर्न मतलब उलट देना, फॉरएवर, हमेशा के लिए उलट दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पे एक ऐसी सरकार आ गई है दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करती है। ऐसी सरकार अंग्रेजों की उस व्हाइट सरकार को आज उलट दी गई है, और उसकी जगह ये ऐसी सरकार आ गई है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और ऐसी सरकार जिसमें रंग भेद नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसा नहीं कि काले के साथ खराब व्यवहार किया जाएगा, दूसरा कानून होगा, और गोरे के साथ दूसरा कानून होगा। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, जो हमारी जो कलर, इसके स्किन कलर की को बिना विचार किए हुए सभी को सभी को अधिकार और स्वतंत्रता देने की मान्यता सरकार प्रदान करेगी। ऐसी सरकार अंग्रेजों की सरकार को उलट करके आई। that day had come through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। अब वो याद कर रहे हैं कि ये दिन, आज जो दिन मिला है, वो हमको हमारे जो लोगों को अनइमेजिनेबल, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे कष्ट और ऐसी दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के हजारों लोगों को मतलब अकल्पनीय बलिदान और अकल्पनीय कष्ट के बाद ये दिन आज आया है। बहुत कष्ट रहा, बहुत बलिदान किया, बहुत लोग मरे, इसके बाद आज वो दिन आया है साउथ अफ्रीका के लोगों को। और ऐसा कष्ट जिसको कभी गिना नहीं जा सकता, और जिसको कभी इसको वापस नहीं किया जा सकता, जो कष्ट दिया है वो अकल्पनीय कष्ट। I felt that day as I have on so many other days. I felt that day as I have on so many other days. That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. I felt that day as I have on so many years, so many other days. I felt that day as I have on so many other days. हाँ, ऐसा दिन जो साउथ अफ्रीका के लोगों के सामने आया, ऐसा
दूसरे लोगों के सामने भी आ चुका है। मैंने वैसा महसूस किया, जैसे भारत के ऊपर भी ऐसा ही था। भारत पर भी अंग्रेजों का शासन था। उनको भी इसी तरह से कष्ट सहने पड़े, उनको इसी तरह से अंग्रेजों के अत्याचार सहने पड़े। तो उन्होंने उन्होंने भारत की बात सोच करके, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके नाम अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, जो अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। और इसी तरह उन्होंने, जैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने, वैसे ही बहुत सारे देशों के लोगों ने कष्ट बर्दाश्त किए, अत्याचार अन्याय बर्दाश्त किया। और मैं अपने को केवल जो उन साउथ अफ्रीका के उन देशभक्त जो आज से पहले देश के लिए बलिदान करके चले गए, मैं उन सबका एक सम हूँ, मैं उन सबका एक टोटल हूँ, अपने को यही कह सकता हूँ। मैंने भी कष्ट सहा, उन्होंने भी कष्ट सहा, तो मैं सबको जो मिला करके मेरा कष्ट और उनका कष्ट, मैं अपने को एक टोटल के रूप में, एक सभी लोग कष्ट जिन्होंने कष्ट सहा, उस कष्ट के टोटल के रूप में मैं अपने को प्रदर्शित कर रहा हूँ। अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर मी, जो हमसे पहले मर गए, उनका कष्ट और मैंने जो सहे वो कष्ट, सब एक ही कष्ट है। मैं केवल जो खड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी उसी कष्ट का पार्टनर हूँ, मैंने भी कष्ट सहा है। That long and noble line ended and now began again with me. और वो नोबल लाइन, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, और वो जो बहुत लंबी अंग्रेजों की, वाइट लोगों की एक लाइन थी, एक उनको नोबल बोलते थे, जो राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों के, उनको नोबल बोलते थे। उन नोबल लोगों की लाइन, and now begin again with me. That long and noble line ended and now began again with me. और अब वो लाइन समाप्त हो गई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे कष्ट होता है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, उनको जिन हजारों साउथ अफ्रीका के लोगों ने देश के लिए कष्ट सहा, आज़ादी के लिए लड़ाई की, दमन के खिलाफ, वाइट्स के दमन के खिलाफ, वाइट्स के अत्याचार के खिलाफ, वाइट्स की क्रूएल्टी के खिलाफ जो लड़ाई की और जो उन्होंने कष्ट सहा, मैं अपने बलिदान किए, अपना जीवन बलिदान किया, मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने I was not able to thank them and they were not able to see me. वो हमें देख नहीं सकते और हम उसे धन्यवाद नहीं दे सकते। To see that their sacrifices, वो नहीं देख सकते हैं। They were not able to see, वो देखने लायक नहीं है। मतलब वो cannot see कि हमने उनकी की हुई जो सैक्रिफाइसेस थी, उन्होंने जो बलिदान किए, उन्होंने जो सैकड़ों साल लड़ाई की, हजारों लोग मरे, उनका बलिदान had wrought. See that what their sacrifices had wrought. उनकी सैक्रिफाइसेस ने आज हमें क्या दिया है? आज हमें स्वतंत्रता दी है, आज हमें अन्याय और अत्याचार से छुटकारा मिला है। उनको वो इसे देख नहीं सकते और हम उसे धन्यवाद देने मैं पेन था और मैं उनको धन्यवाद देने के लायक नहीं था। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू, मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ, और मुझे ये भी कष्ट हो रहा है कि वो आज का दिन देख नहीं सकते। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. पॉलिसी मतलब नीति, नियम। पॉलिसी ऑफ अपार्थीड तो बताया मैंने, अपार्थीड रंग भेद नीति, जिसके आधार पे अंग्रेजों ने अफ्रीका में शासन स्थापित किया। पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। हमारे देश में
गहरा घाव दे दिया, बनाया किसने? एपार्थीड की पॉलिसी ने। सरकार की जो एपार्थीड गवर्नमेंट थी, द एपार्थीड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसने हमारे देश के लोगों, देश पर एक गहरे घाव लगा दिए। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। वो जो गहरे घाव लगे हैं, उन गहरे घावों को पूरा करने के लिए, भर्ती करने के लिए, ठीक करने के लिए, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी को बहुत साल लगेंगे उन घावों को भरने के में, जिन्होंने हमारी जनरेशन्स को, हमारे 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 हजारों लोगों को वो गहरे घाव दिए, हमारे देश को गहरे घाव दिए। हमको पूरा करने में, उनको घावों को भरने में हमें सैकड़ों साल लगेंगे, बहुत साल लगेंगे। एंड दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बू, वॉल्ट सेलेसस एंड चीफ लूथिलिस एंड यूसुफ डाडोस। एंड दैट, और वो जो अंग्रेजों का अत्याचार था, अंग्रेजों का जो ऑपरेशन था, दमन था, उनकी जो अत्याचार था, उनका जो ये सब था, तो बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बू। लेकिन एक तो ये हमको हमारे देश में जो उन्होंने किया, उसके घाव हम वर्षों तक पूरा भर नहीं सकते। और लेकिन उसका एक दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि उसने, उस अत्याचार के शासन ने, उस दमन के शासन ने, अंग्रेजों के शासन ने कुछ अच्छे लोग पैदा कर दिए, जो उसको लोग पैदा कर दिए, अच्छे कवि पैदा कर दिए, अच्छे लोग पैदा कर दिए, जिन्होंने मानवता के लिए बहुत सारे काम किए और लोगों को अपनी लेखों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से जनता को बताया कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया है, कैसा किया है, आपने क्या कष्ट सहा है, हमने क्या कष्ट सहा है। तो ये बहुत सारे नाम लिखे हैं, ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिमलस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लूथिलिस, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time। तो ये मैंडेला के टाइम के ये लोग हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में जो अत्याचार हुए, वो उसको देख करके, उनके कष्ट को देख करके ये पैदा हुए। इन्होंने क्या क्या किया मुझको नहीं मालूम है, ये अलग से देखना पड़ेगा। These are the some prominent names in the struggle against Parthi for the use of a definite article with proper nouns। See exercise it on 25। अब 6 लोगों के नाम बताए, वो आपकी किताब में देखिएगा। और इन लोगों ने ये जो एपार्थीड के खिलाफ जो मूवमेंट किया गया, जनता ने जो लड़ाई की, उनके साथ में ये लोग भी लगे रहे। और इन लोगों ने अपने कविता के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से और जनता को जागरूक किया और सरकार की खिलाफत की और बोला कि आप देश को आज़ाद करके हमें अपना शासन स्थापित करने की बात करें। ये हमने यहाँ पर लेसन ख़त्म कर दे रहे हैं, ये 20 जहाँ तक है यहाँ पर ख़त्म कर दे रहे हैं। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेसन पार्ट बचा हुआ थोड़ा सा है, इसको हम बाद में लेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा और एक्सरसाइज वगैरह है उनको कराएंगे। फिर हम आपको अपनी ओर से एक्सरसाइज कराएंगे जो इसमें नहीं दी हुई है, ताकि आपको लेसन में एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, इफ गिवन to you as a question in your examination, you will be able to give correct reply. Okay, so always when you know that when you attend this class, you should have the book when I take it next. Okay, bye.